Welcome to this lecture. Today we will be discussing lens maker formula. This is one of the important question of the optics. Before discussing this lens maker formula, we should know some assumptions which we use for deriving this lens maker formula. लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करने के लिए कुछ assumptions की जरूरत है. पहले हम उन assumptions को डिस्कस करेंगे, उसके बाद we will go for its derivation. For example, यहां पर हमारी ये कन्वेक्स लेंस है. पहली एजम्पशन जो है वो क्या है? वो है कि जो लेंस है ये हम थिन लेंस लेते हैं. लेंस टेकन टू बी थिन. लेंस टेकन टू बी ए थिन लेंस. थिन लेंस क्यों हम लेंगे? क्योंकि मैंने आपको कहा जो डिस्टेंसेस है वो हम मेजर करते हैं लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से. हम लेंस क्यों थिन लेंगे? ताकि जो ये लेंस है, जो इसके सरफेसेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के पोल्स है, वो पोल्स इस ऑप्टिकल सेंटर के साथ कोइंसाइड करेंगे. लेंस टेकन is a thin lens because the poles of its refracting surfaces should coincide with the optical center. दूसरा, जो ये लेंस है इसका जो ये डायमीटर है, एपर्चर, ये हम बहुत स्मॉल लेते हैं. एपर्चर ऑफ लेंस इज वेरी स्मॉल. तीसरी एजम्पशन, जो लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करने के लिए हम ऑब्जेक्ट लेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट टेकन इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. और चौथी एजम्पशन, जो इंसिडेंट रे है या जो रिफ्रैक्टेड रे है, दे मेक स्मॉल एंगल्स with the principal axis. So these are the assumptions which we use for deriving the lens maker formula. First assumption, lens taken is a thin lens. Second, aperture of lens is very small. Object taken is a point object. The incident ray, the refracted ray and the normal, they make small angles with the principal axis. Now let us see what's the lens maker formula and why it is called lens maker formula. Lens maker formula जो है वो basically ऐसे है, 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. जो ये lens maker formula है, it is basically the relation between the focal length, the refractive index of the material of lens and the radii of curvatures of its surfaces. लेंस मेकर फार्मूला जो है ये एक रिलेशन है किस किस के दरमियान? लेंस की फोकल लेंथ, लेंस का जो मटेरियल होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और लेंस के जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के दरमियान. इसको हम क्यों लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं? चूंकि जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो लेंसें बनाता होगा, because the manufacturer uses this formula to design a lens of required focal length from a glass of given refractive index. For example, यहां पर हमारा गिलास है, तो मैन्युफैक्चरर जो है, लेंस बनाने वाला जो है, वो इसी फार्मूला को यूज करता है for making a lens of desired focal length. It is because of that this formula is called lens maker formula, because the manufacturer uses this formula for designing a lens of required focal length from a glass of given refractive index. अगर हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ये क्या बोलती है हमें? The reciprocal of focal length of a lens, the reciprocal of focal length of a lens placed in air is equal to mu minus 1 times the difference of radii of curvatures of its surfaces. ये mu जो है, this is the refractive index of the material of the lens. क्या कहता है? Reciprocal of focal length of lens placed in air is equal to mu minus 1 times the difference of reciprocals of radii of curvatures of its refracting surfaces.
Let us today derive this mirror formula for a convex lens. Now we will derive this lens formula. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार आया एग्जाम में. आज हम इस लेंस बेकर फार्मूला को डिराइव करेंगे. आप देखो कैसे डिराइव करेंगे. सपोज बेटा यहां पर हमारे पास एक डबल कन्वेक्स लेंस है. दिस इज अ डबल कन्वेक्स लेंस. Why is the double convex lens? Because both of its surfaces are convex. Suppose ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. ये मैंने ले ली एक डबल कन्वेक्स लेंस. सपोज इसका सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर जो है वो C है. इस लेंस के दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. एक है x p1y, दूसरा है x p2y. जब हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेते थे तब हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पोल्स से डिस्टेंसेस मेजर करते थे. लेकिन आज हमने कहां से करनी है? आज हमने करनी है ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर. सपोज जो ये लेंस है, जिस मटेरियल की बनी है ये, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. सपोज इस डबल कन्वेक्स लेंस को मैंने एक रियरर मीडियम में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1. यहां से भी रियरर मीडियम है, यहां से भी रियरर मीडियम है. अंदर जो है वो डेंसर मीडियम है. XY is a double convex lens made of a material of refractive index μ2 and placed in a medium having refractive index μ1. ठीक है. तो मैंने ये लेंस जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसके मटेरियल का μ2 है. इसको मैंने एक रियरर मीडियम में रखा, से एयर में रखा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1. चूंकि इस लेंस के दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस सरफेस का अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इस सरफेस का अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बिकॉज दे आर द टू स्फेरिकल सरफेसेस. जो xp1y है, सपोज इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो है C1. जो xp2y है, सपोज इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दैट इज C2. सपोज O जो मेरा है, O पॉइंट ऑब्जेक्ट है. What is O? It is a point object which is placed at a distance u from the optical center. O जो है ये क्या है बेटा? This is the point object placed at a distance u from the optical center. मैंने आपको कल बताया जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो हमेशा रिफ्रैक्टिंग सरफेस को नॉर्मल होती है. इसका मतलब है जो ये Cn है, दिस C1N1 है, दिस इज नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp1y. xp1y. प्लीज लुक एट द डायग्राम. C1N1, this is perpendicular to the refracting surface xp1y. देखो बेटा, पहले हम क्या बताएंगे, यहां पर जो ये लेंस है, यहां पर हमारे दो रिफ्रैक्शंस होंगी. एक रिफ्रैक्शन जो होगी दैट विल टेक प्लेस एट द सरफेस xp1y. हियर द लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम रियरर टू डेंसर. उसके बाद जो सेकंड रिफ्रैक्शन हो जाएगी दैट विल टेक प्लेस एट द सरफेस xp2y. लेंस में दो रिफ्रैक्शन होती है. पहले सरफेस पे एक रिफ्रैक्शन फ्रॉम रियरर टू डेंसर, उसके बाद फ्रॉम डेंसर टू रियरर. तो हम अलग अलग पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट सरफेस xp1y, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट सरफेस xp2y. पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन एट सरफेस, एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp1y. ये फार्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे? अलग अलग हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे. इस सरफेस पे क्या होगा, इस सरफेस पे क्या होगा. जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे एट सरफेस xp1y, उस वक्त क्या बताएंगे हम कि जो
लेंस के इस साइड वाला मीडियम है, या हम बताएंगे सपोज लेट्स अज्यूम दैट द सरफेस XP2Y इज एब्सेंट। जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे किस सरफेस पे, XP1Y पे, हम बताएंगे कि जो सरफेस XP2Y है दैट इज एब्सेंट एंड द मटेरियल ऑफ द लेंस इज कंटिन्यूअस। यानी जो लेंस का मटेरियल है इस साइड में, ये सारा कंटिन्यूअस है, यानी जो ये सारा मीडियम यहां से है ये डेंसर मीडियम है। So in order to study the refraction of light at the surface XP1Y, let us assume that the surface XP2Y is absent and the material of lens is continuous. That means जो surface XP1Y है, इसके right side में जो material है, वो इसके right side में जो medium है, that's a denser medium. अब क्या होगा? एक ray of light इस object O से आएगी, it will strike the surface XP1Y normally, therefore it goes undeviated. ठीक है बेटा, ठीक है। सेकेंड रे ऑफ लाइट यहां से आई, इसने स्ट्राइक किया सरफेस XP1Y को, ठीक है ना, एट पॉइंट A at an angle of incidence I. Second ray of light coming from the object, it strikes the surface XP1Y, ठीक है ना, at point A at an angle of incidence I. अब देखो, आफ्टर रिफ्रैक्शन, चूंकि इसको रियरर से डेंसर में जाना है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां से इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये है रिफ्रैक्टेड रे आपकी, ये जरूरत नहीं है एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां लिखना। तो देखो, OA इंसिडेंट रे है, तो AB जो आपकी है ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। चूंकि सरफेस XP2Y1 मैंने कहा ये एब्सेंट है, मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा, इट विल स्ट्राइक द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट I1। देयरफॉर जो ये I1 है, I1 इस ऑब्जेक्ट की कौन सी इमेज है, रियल इमेज। चूंकि ये रिफ्रैक्टेड रे यहां से आई, ये रिफ्रैक्टेड रे यहां से आई, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज ने प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां पर कट किया, तो I1 जो है ये है इस ऑब्जेक्ट O की कौन सी इमेज, रियल इमेज। सपोज इट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ V1 फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और जो ये सरफेस XP1Y है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सपोज वो है R1, वो R1 हमें बेसिकली P1 से मेजर करना है। चूंकि मैंने बताया लेंस जो है थिन, लिहाजा P1 किसके साथ कोइंसाइड करेगा, C के साथ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस, दिस इज R1, ठीक है। तो इस वाले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये होगा R2। किस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, XP2Y का। अब देखो, O क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, किस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुई, XP1Y। I1 क्या है इसकी, इमेज, रियल इमेज। इसका मतलब है XP1Y ने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया, कहां से, O से कहां लिया, I1। नाउ चूंकि रिफ्रैक्शन किस सरफेस पे हुई, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहे हैं किस मीडियम से, फ्रॉम रियरर टू डेंसर मीडियम। आपको पता है whenever light travels from nearer to denser medium, then हमें एक फार्मूला जो है, रिलेशन जो है, हमने परसों निकाली थी। Therefore we have for refraction from nearer medium to denser medium, we have, क्या है रिलेशन होती है, माइनस टाइम्स यहां ऐसे है, μ1 डिवाइडेड बाय माइनस u प्लस μ2 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। जब भी रिफ्रैक्शन होती है फ्रॉम रियरर टू डेंसर मीडियम एट द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वी हैव दिस रिलेशन जो मैंने पढ़ाई, μ1 डिवाइडेड बाय माइनस u प्लस μ2 डिवाइडेड बाय v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। यहां जो u है वो u ही है, क्योंकि यहां इस रिलेशन को डिराइव करने में मैंने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी दिए हैं।
तो u के बदले क्या है मेरा u, है ना, हियर u is equal to u because I have given the sign conventions while deriving this relation. जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या है v1, v जो है वो है v1, v किसके बराबर है बेटा v1 के बराबर, ठीक है ना, v है बराबर v1, और जो ये x p1y सरफेस है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है r1, तो r के बदले लिखेंगे हम r1, r के बदले क्या लिखेंगे r1, therefore we have क्या बनेगी वो इक्वेशन, ये बनेगी μ1 डिवाइडेड बाय माइनस u, वेरी गुड, प्लस शाबाश μ2 डिवाइडेड बाय v1, ओके, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r1. लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो हमने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन एट सरफेस xp1, लेकिन इस वक्त हमने एज्यूम किया था जो सरफेस xp2y है दिस इज एब्सेंट, बट एक्चुअली द सरफेस xp2y इज नॉट एब्सेंट. अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे किस सरफेस पे, xp2y, ठीक है ना. अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एट सरफेस xp2y. यहां देखो बच्चों, नाउ एक्चुअली जो सरफेस xp2y है दिस इज नॉट एब्सेंट. यहां देखो मित्र, जो रिफ्रैक्टेड रे AB थी दिस विल नाउ एक्ट एज इंसिडेंट रे फॉर सरफेस xp2y. यहां पर हम इसका इस सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसका नाम रखेंगे C2N2. ये जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया इस सरफेस का, यहां रखो, ये नॉर्मल है C2N2. किस सरफेस पे नॉर्मल है, xp2y. ये जो रिफ्रैक्टेड रे AB है दिस विल नाउ एक्ट इंसिडेंट रे फॉर सरफेस व्हाट xp2y. लिहाजा ये AB जो रिफ्रैक्टेड रे इट विल एक्ट एज इंसिडेंट रे फॉर सरफेस xp2y. अंदर से कौन सा मीडियम है, डेंसर, बाहर कौन है, जब लाइट जाती है डेंसर टू रियर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. लिहाजा ये AB जो है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. आई सी टू मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट I. To meet the principal axis at point I. The refracted ray AB now acts as incident ray for surface xp2y. Therefore, it undergoes one more refraction, bending away from the normal C2N2 to meet the principal axis at point I. Therefore, जो ये I है, I is the final image. I is the final image of object O. तो जो I आपका है, I आपकी है, ये फाइनल इमेज है किस ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट O की. सपोज इस I की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर वो V है. सो व्हाट इज द फाइनल इमेज डिस्टेंस, V. यहां देखो बेटा, पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, O. जब रिफ्रैक्शन हुई सरफेस xp1y पे तो हमारा ऑब्जेक्ट O जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या थी U. ये ऑब्जेक्ट कहां शिफ्ट हुआ, I1 पे, I1 इमेज बन गई. नाउ जो सरफेस xp2y है इसने इमेज I1 को शिफ्ट किया, इसने इमेज को शिफ्ट किया कहां से, I1 तो I. इस सरफेस ने कहां इमेज बनाई थी, I1 पे, लेकिन इस सरफेस ने इमेज को शिफ्ट किया कहां से, I1 तो I. इस सरफेस ने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया था O से कहां, I1 तक. इस सरफेस ने इमेज I1 को शिफ्ट किया फ्रॉम I1 टू I. लिहाजा जो ये I1 है, I1 दिस विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस xp2y. दिस विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस xp2y. लिहाजा सरफेस xp2y जो है इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कौन रहेगा, I1.
क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट था वो, इसने इमेज यहां लाई। अब xp2y ने यह इमेज I1 से उठाई और यहां पर ले ली, तो इसका मतलब है दिस I1 दिस विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस xp2। तो फाइनल इमेज, फाइनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी आपकी v1। फाइनल इमेज डिस्टेंस क्या होगी v1। नाउ चूंकि रिफ्रैक्शन कहां से हुई, फ्रॉम डेंसर टू रियरर मीडियम। कल हमने पढ़ा कल वो डेंसर टू रियरर, ये जो आज मैंने फार्मूला यूज की, पहले फार्मूला ये की थी मैंने रियरर टू डेंसर। कल ही मैंने पढ़ाया जब रिफ्रैक्शन होगी फ्रॉम डेंसर टू रियरर मीडियम एट द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो हमारे पास क्या फार्मूला होती है शाबाश, μ2 डिवाइडेड बाय माइनस u, यही है ना, प्लस μ1 डिवाइडेड बाय v is equal to μ1 minus μ2 divided by r. Very nice. Since the refraction takes place from denser to nearer medium at surface xp2y, therefore we have μ2 divided by minus u plus μ1 divided by v is equal to μ1 minus μ2 divided by r. यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हमारा I1, लिहाजा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी v1। Here u is equal to v1, इमेज डिस्टेंस क्या है फाइनल इमेज की v is equal to v। तो आपका कौन सा सरफेस है xp2y, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है r2, r is equal to r2। ठीक है, लगाओ भाई इस इक्वेशन में, therefore above equation becomes μ2 divided by minus v1, very good, plus μ1 divided by v is equal to μ1 minus μ2 divided by r2, very good। ये माइनस ऊपर ले लो बेटा, ये बनेगा माइनस μ2 by v1 प्लस μ1 by v, इसका माइनस कॉमन लेंगे, माइनस, जब इसका माइनस हम कॉमन लेंगे μ2 बनेगा पॉजिटिव, μ1 बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा μ2 minus μ1 divided by r2। Let us call this equation number 2। अब सिंपल हमें क्या करना है, एडिशन, मैथमेटिक्स लगाना है। ये समझ आया ना, यहां पर u है v1, v है v, r है r2, साइन कन्वेंशन ऑलरेडी दिए गए हैं ये जब हमने डिराइव किया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सिंपली ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। जरा फर्स्ट क्या है, μ1 डिवाइडेड बाय माइनस u, ठीक है, LHS अलग ऐड हो जाएंगे, प्लस μ2 डिवाइडेड बाय v1, सेकंड का बोलो क्या है माइनस, शाबाश, μ2 डिवाइडेड बाय v1, ठीक है ना, प्लस μ1 डिवाइडेड बाय v, ठीक है, इज इक्वल टू RHS पहले का क्या है μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r1, प्लस माइनस बनेगा माइनस वहां पर, तो ये बनेगा माइनस, शाबाश, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r2। जब मैंने ऐड किया फर्स्ट सेकंड, ये देखो, ये फर्स्ट का LHS है, ये फर्स्ट का RHS है, ये फर्स्ट का सेकंड का LHS है, ठीक है ना, ये सेकंड का RHS है, क्योंकि वहां प्लस माइनस होगा माइनस। μ2 v1 goes, μ2 डिवाइड बाय v1 माइनस μ2 डिवाइड बाय v1 goes, क्या बनेगा ये बेटा, ये बनेगा μ1 डिवाइडेड बाय माइनस u, ठीक है, प्लस μ1 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू, यहां μ2 माइनस μ1 कॉमन लेंगे, ये होगा μ2 माइनस μ1, इसको मैंने कॉमन ले लिया, यहां आया ब्रैकेट में 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। इस माइनस को ऊपर ले लेंगे भाई, ये बनेगा माइनस μ1 बाय u प्लस μ1 बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू क्या आया शाबाश 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। इस साइड में क्या कॉमन है μ1, तो μ1 को कॉमन ले लो भाई, ले लो कॉमन μ1 को,
म्यू वन को कॉमन ले लो बेटा। देखो जब हम म्यू वन को कॉमन लेंगे पहले हम प्लस वाला लिखेंगे, ये बनेगा 1/v, ठीक है, ठीक है, माइनस क्या रहेगा 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू शाबाश शाबाश 1/r1 माइनस 1/r2। ये बनेगा μ1 इंटू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहां हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई μ1, थ्रू आउट डिवाइड करेंगे μ1 से। जब हम डिवाइड करेंगे ये μ1 खत्म हो गया, ये वाला μ1 खत्म हो गया बेटा। यहां पर क्या रहा आपको शाबाश 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, मेरी तरफ देखो, ये बनेगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1। ये μ1 जो है ना, ये μ1, ये इसको डिवाइड हो गया, इनटू क्या आएगा बेटा, बोलो फटाफट शाबाश, इनटू क्या आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये सीधे इसको डिवाइड हो गया, ये सीधे याद रखना μ1 को इसके नीचे ले लो, ठीक है ना, जैसे करते हैं मैथमेटिक्स में। आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, ये बनेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर अलग अलग देंगे, तो जरा क्या बनेगा μ2 डिवाइडेड बाय μ1, ठीक है ना, उसके बाद μ1 बाय μ1 हो गया 1, तो यहां आएगा -1, ठीक है ना भाई, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1, μ1 बाय μ1 कैंसिल, उसके बाद क्या आया 1 इनटू क्या आया बेटा शाबाश 1/r1 माइनस 1/r2। मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा लेंस फार्मूला, जैसे मिरर फार्मूला वैसे लेंस फार्मूला भी होती है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, बट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो क्या बनेगी आपको अबो इक्वेशन, देयरफॉर अबो इक्वेशन बिकम्स 1/f इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस 1 इंटू शाबाश 1/r1 माइनस 1/r2। इसको रखो इक्वेशन नंबर 3, इसको भी हम कहेंगे लेंस बेकर फार्मूला। यहां देखो, इफ द रियरर मीडियम इज ईयर, अगर आपका जो ये रियरर मीडियम है ये ईयर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर होगा। यहां पर क्या रियरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, तो μ1 किसके बराबर होगा, इफ द रियरर मीडियम इज ईयर देन μ1 इज इक्वल टू 1, देन μ1 इज इक्वल टू 1, लेट μ2 इज इक्वल टू म्यू, जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस वक्त हम इसको क्या रखेंगे म्यू नाम। अगर रियरर मीडियम एयर होगा उस वक्त जो लेंस का मीडियम हो, लेंस का मटेरियल जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 जो है वो किसके बराबर रखेंगे हम, म्यू के बराबर। therefore third becomes देखो बेटा क्या बनेगा थर्ड, 1/f इज इक्वल टू μ2 के बदले क्या लिखेंगे म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू शाबाश 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्या आएगा हमें आएगा क्या आएगा शाबाश, हमें आएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू शाबाश 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज लेंस मेकर फार्मूला। तो निकला हमें 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये क्या आपकी है, व्हाट इज दिस, दिस इज लेंस मेकर फार्मूला। दूसरी सूरत में भी हम इसको लिखेंगे, अगर हमारा मीडियम सेकंड जो होगा, अगर हमारा मीडियम सेकंड ईयर नहीं है तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 1/f इज इक्वल टू what is μ2 by μ1, relative refractive index of medium second with respect to medium first। इसको हम ऐसे लिखेंगे μ2 1, ठीक है ना, माइनस 1 इंटू शाबाश 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ लेंस मेकर फार्मूला।
This is another form, form of what? Lens maker formula. So in this way we derived what? Lens maker formula. Lens formula. इसको हम थिन लेंस फार्मूला भी कहते हैं और लेंस फार्मूला भी कहते हैं. लेंस फार्मूला जो है, आप लोगों ने लेंस फार्मूला क्लास 10th में पढ़ी है. वहां आपने सुना था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. सो बेसिकली this lens formula, it is the relation between focal length of lens, image distance and object distance. A formula which relates the focal length of lens with image distance and object distance. That formula is called as lens. It's a lens formula या simply thin lens formula. Now, अगर हम इसको स्टेट करेंगे, स्टेटमेंट में क्या बोलेगी? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. लेट अस डिराइव दिस लेंस फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस. हम एक कन्वेक्स लेंस के लिए ये लेंस फार्मूला डिराइव करेंगे. डिराइवेशन ऑफ लेंस फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस. फॉर कन्वेक्स लेंस जब इमेज रियल होगी. लेट अस टेक दैट कंडीशन व्हेन द इमेज इज रियल. वर्चुअल के भी निकाल सकते हैं, अभी हम यहां रियल के लिए पढ़ेंगे. सपोज मेरे बेटा ये हमारे पास एक डबल कन्वेक्स लेंस है. दिस इज अ डबल कन्वेक्स लेंस. इट्स अ वेरी थिन लेंस एक्स वाई. ये इसकी सपोज प्रिंसिपल एक्सिस है. ये है पोल P1, इस सरफेस का पोल होगा P2. ये रखेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर, इसका नाम O रखेंगे. सपोज जो सरफेस X P1Y है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सपोज वो C1 है. ठीक है, C1 है. जो X P2Y है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो C2 है. सपोज यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा AB बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C2. कितना दूर रखा मैंने? यहां मैंने रखा ये ऑप्टिकल सेंटर से U की दूरी पर. AB इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस U फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. ठीक है, एक रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट के टॉप से आएगी. ये होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस विल पास थ्रू द फोकस. इसका फोकस उसको रखेंगे हम F1 नाम. किस सरफेस का फोकस? X P1Y का. ये रिफ्रैक्टेड रे है बेटा आपका. इस पॉइंट को मैं नाम रखूंगा D. ये इसका फोकस रखेंगे F2, इस सरफेस का. दूसरी रे जो आएगी दैट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. ऑब्जेक्ट के टॉप से दूसरी रे आई. ये कहां से पास हुई? ऑप्टिकल सेंटर से. इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. लिहाजा आपको पता है जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो अनडिविएटेड जाती है. इट विल, ये जो रे है इट विल इंटरसेक्ट द अबो, जो ऊपर वाली रिफ्रैक्टेड रे है इसको ये इस पॉइंट पे काटती है. तो इस पॉइंट को हम रखेंगे नाम A'. लिहाजा A' जो होगा दिस विल बी रियल इमेज ऑफ A.
एक ray of light parallel to principal axis after refraction will pass through the focus f1. Second ray of light coming from the object will pass through the optical center and will meet the above refracted ray at point A dash. A dash is therefore the real image of point A. अब यहां A dash से यहां पर इसको परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, इसका नाम रखेंगे A dash B dash. ये A dash B dash जो है, this is therefore real and what शाबाश, real and inverted image of object AB which is formed at a distance V from the optical center. Which is formed at a distance t from the optical center. ठीक है ना? Therefore this A dash B dash, this is the real and inverted image of object AB. अब हम सीधे वही सिमिलर ट्रायंगल वाला, जो सिमिलर ट्रायंगल्स वाला कंसेप्ट है वही यूज करेंगे। यहां पर देखो बेटा, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABO, ये देखो ABO एक ट्रायंगल है। दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास A dash B dash O, ये वाली ट्रायंगल A dash B dash O। कौन कौन ट्रायंगल है शाबाश? ट्रायंगल ABO, दूसरी क्या है? ट्रायंगल A dash B dash O। ट्रायंगल ABO जो है, इसमें ये एंगल 90 है, ठीक है, ये एंगल 90 है। ट्रायंगल A dash B dash O जो है, इसमें ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है। लिहाजा इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है। ट्रायंगल ABO जो है, इसका एक एंगल ये है। ट्रायंगल A dash B dash O जो है, इसका एक एंगल ये है। These are vertically opposed angles, therefore they are also equal. लिहाजा इस ट्रायंगल के दो एंगल्स इस ट्रायंगल के दो एंगलों के बराबर है। जब एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगलों के बराबर होंगे, तब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। हम लिखेंगे therefore ट्रायंगल ABO is similar to triangle A dash B dash O. जब दो ट्रायंगलें सिमिलर होती है तो उन ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है, दैट इज प्रोपोर्शन। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? एक साइड क्या है? AB, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है शाबाश? A dash B dash। AB डिवाइडेड बाय A dash B dash इज इक्वल टू, इसका दूसरा साइड है OB, है ना, OB डिवाइडेड बाय OB dash। याद रखो बेटा नजर, AB डिवाइडेड बाय A dash B dash इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय OB dash। इसको नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो बेटा, इस डायग्राम में, रे डायग्राम में हमारे पास एक और ट्रायंगल है। ये वाली ट्रायंगल देखो, DOF। यहां देखो बेटा, DOF1 ये ट्रायंगल है। DOF1 ये वाली ट्रायंगल DOF1। चूंकि F1 जो है वो फोकस है, लिहाजा यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी फोकल लेंथ, ठीक है ना। एक ट्रायंगल है DOF1, दूसरी ट्रायंगल है A dash B dash F1। DOF1 में भी एक एंगल F1 है, A dash B dash F1 में भी एक एंगल F1 है। ये दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे, वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स। DOF1 का ये एंगल 90 है और A dash B dash का ये एंगल 90 है ना, 90। लिहाजा DOF1 के दो एंगल्स A dash B dash F1 के दो एंगलों के बराबर है, लिहाजा ये दो ट्रायंगल्स भी आपस में क्या होंगी? सिमिलर। नाउ ट्रायंगल DOF1 is similar to triangle A dash B dash F1. Triangle DOF1 is similar to triangle A dash B dash F1. लिहाजा इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो जो होगा दैट विल बी आल्सो प्रोपोर्शनल। तो therefore DO divided by A dash B dash, DO divided by A dash B dash is equal to OF1 शाबाश डिवाइडेड बाय, है ना, ये OF1 डिवाइडेड बाय B dash F1 डिवाइडेड बाय B dash F1। DO divided by A dash B dash
इज इक्वल टू OF1 डिवाइडेड बाय क्या है शाबाश, B'(F1). यहां देखो बेटा, मगर ये DO किसके बराबर है, AB के बराबर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे वो भी इक्वल, ठीक है ना। बट DO is equal to AB, therefore above equation becomes क्या बनेगी, DO के बदले क्या लिखूंगा मैं, AB divided by A'(B' is equal to OF1 divided by B'(F1). इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर हम फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करेंगे, LHS बराबर है, therefore RHS are also equal। From first and second we get OB divided by OB' is equal to OF1 divided by B'(F1). इसको रखो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बस हो गया, थोड़ा सा आप, मैंने आपको बताया साइन कन्वेंशन में जो डिस्टेंसेस है वो हम हमेशा लेंस के कहां से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। OB डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है भाई। O'(B' मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है भाई। OF1 मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, चलेगा। अब क्या रहा, B'(F1). दिस इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, वी हैव टू मेजर दिस डिस्टेंस आल्सो फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। Now, since all the distances are measured from optical center, all the distances are measured from the optical center, तो हमारा क्या रहा शाबाश, हमारा क्या रहा यहां पर शाबाश, यहां देखो। अब क्या है यहां पर बेटा शाबाश, हमें कौन सा मेजर करना है, B'(F). therefore B'(F) किसके बराबर आएगा बेटा, ये बता मुझे फटाफट। B'(F) किसके बराबर आएगा, यहां रखो नजर। B'(F) जो होगा, B'(F1 सॉरी, B'(F1 जो होगा वो होगा OB' माइनस OF1, है ना, OB' माइनस OF1। therefore B'(F1 जो होगा, this will be equal to OB' minus OF1। therefore third becomes, क्या बनेगी मेरी थर्ड, बोलो थर्ड क्या बनेगी शाबाश, OB divided by OB' is equal to OF1 divided by क्या रहेगा शाबाश, OB शाबाश OB' minus OF1, ठीक है, ठीक है। नाउ बाय साइन कन्वेंशन, देखो बेटा, OB जो है, दिस इज मेजर्ड अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, दिस इज इक्वल टू माइनस U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। OB' जो है इस साइड में, OB', this is image distance measured in the direction of incident light, therefore this is V। OF1 जो है that is equal to small f, यहां पर देखो फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लिहाजा जो कन्वेक्स लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है, याद रखना है ना, तो ये पॉजिटिव है। कनकेव की क्या होती है, नेगेटिव। therefore fourth becomes क्या बन गया हमारा फोर्थ शाबाश, माइनस U, वेरी नाइस, डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय क्या है, OB' किसके बराबर है, V माइनस F, ठीक है ना, V माइनस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा माइनस UV प्लस UF इज इक्वल टू VF। ये देखो ना, माइनस UV
माइनस माइनस इज प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ. इसको डिवाइड करो थ्रू आउट बाय यू वी एफ. डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय यू वी एफ वी गेट, dividing through out by UVF we get minus UV divided by UVF plus UF divided by UVF is equal to VF divided by UVF. UV cancels, यहां पर क्या क्या कैंसिल हो गया, U तो F कैंसिल हो गया, यहां पर UF goes, यहां पर कौन सा कैंसिल हो गया, VF will go. तो यहां पर क्या बना आपको -1 बाय एफ, ठीक है, प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय यू. 1 बाय यू को यहां लाओ, 1 बाय एफ को उधर ले लो, ठीक है ना. ये क्या बनेगा, शाबाश, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ. 1 बाय यू को यहां लाया, 1 बाय एफ को उधर लाया, तो हमें क्या निकला, शाबाश, 1 बाय एफ is equal to 1 by V minus 1 by U, which is required. This is thin lens formula. This completes today's lecture.